Good evening, students. Today we are going to learn combination of capacitors in series. Okay, first definition: when negative plate of one capacitor is connected with positive plate of second, and negative plate of second capacitor is connected with positive plate of third, and so on. Thus we can say that the capacitors are connected in series. Okay, now consider three capacitors C1, C2 and C3. All right, okay, now we know that in series combination charge Q is same. Okay, and potential difference is different across each capacitor. Okay, and this whole combination is run with the battery of potential V, okay, which is the total potential. Now the potential differences across the various capacitors are V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2, and V3 is equal to Q upon C3. Now total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, so then I substitute these values into V1 plus V2 plus V3, so I get Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Okay, now on the right hand side Q is common. Okay, now this Q is in numerator, अगर इज इक्वल टू के उस साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ गया. ओके, नाउ V बाई Q इज इक्वल टू 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Now if Cs is the equivalent capacitance of a series combination, so we know that capacitance C is equal to charge divided by potential difference. Okay, so if Cs is the equivalent capacitance of series combination, so Cs is equal to Q by V. So what is the reciprocal of 1 upon Cs? V by Q. Okay, so in place of V by Q I write 1 upon Cs. So 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay, and for if we have n number of capacitors, then formula becomes this. Okay, now for series combination of capacitors, the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocals of individual capacitance. Okay, second, the equivalent capacitance is smaller than smallest individual capacitance. Okay, इसका मीनिंग समझा दो. सपोज के ये एक कैपेसिटर है. ओके, और ये दूसरा एक कैपेसिटर है. नाउ इन दोनों को सीरीज़ में जॉइन किया है और ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है. ओके, तो अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा. ओके, सो अगर सिंपली मैं 1 अपॉन Cs इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट ऑन कर रहा हूँ. 1 अपॉन Cs इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. ओके, Cs इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके, सो ये क्या होगा, C1 और C2 दोनों ही 2 माइक्रोफैराड हैं, तो यहाँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2. ओके, तो 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4. ओके, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया 1. सो 1 माइक्रोफैराड है, हमने C1 और C2 की क्या वैल्यू ली थी 2 माइक्रोफैराड, और जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आया वो कैसा आया 1 माइक्रोफैराड. मीन्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, जो छोटे से भी छोटा आएगा. इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज कि हमारे पास 2, 3 और 5 माइक्रोफैराड के अगर कैपेसिटर होते तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आता वो 2 से भी स्मॉल होता. राइट, और थर्ड,
charge on each capacitor is same. Always remember, in series combination of capacitors, charge on each capacitor is same. जैसे 10th स्टैंडर्ड में हमने रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो उसमें वहाँ पे करंट सेम होता था. ओके. देन फोर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस. ओके, ये दिख रहा है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस. ऑलराइट, नाउ सेकंड, and this is for capacitors in parallel combination. Now for first definition, when positive plates of all the capacitors are connected to one common point and negative plates of all the capacitors are connected to another, then we can say that the capacitors are connected in parallel. Okay, now all the capacitors are connected in parallel. All right, now this combination is run by a battery of potential V. All right, in parallel combination voltage is same, okay, but charge is different. Okay, voltage is same and charge is different. Okay, जैसे हमारा होम अप्लायंसेस होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसलिए उन सब में वोल्टेज क्या जाता है, सेम जाता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर कैपेसिटर का चार्ज अलग अलग है. फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज Q1 है, सेकंड का Q2 है और थर्ड का Q3 है. ओके, नाउ इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम and charges are different, and which is given by Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. The total charge stored in the combination is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, in place of Q1, Q2, Q3 I write C1V, C2V and C3V. Okay, so V common निकाल दिया. Okay, now if Cp is the equivalent capacitance of parallel combination, okay, so we know that C is equal to Q by V, तो Q is equal to CV, तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q is equal to CPV. so in place of Q I write CPV. okay, now VV cancel from both the sides, so what I get, Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. so okay, and if we have n capacitors, so Cp is equal to C1 plus C2 up to Cn. ऑलराइट, मीनिंग कि सपोज़ के हमारे पास 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराडे का है, 3 माइक्रोफैराडे का है, 5 माइक्रोफैराडे का. तो इनका अगर ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में जॉइंट किए हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा. जस्ट सिंपली हमें उसका एल्जेब्रिक सम ले लेना है. 2 + 3 5 एंड 5 + 8 ओके 13 माइक्रोफैराडे, ये हमारा आंसर है. ओके, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. ओके, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 माइक्रोफैराडे का है और दूसरा भी 2 माइक्रोफैराडे का है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4. सो वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द लार्जर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. ओके, तो ये दिख रहा है दोनों 2 थे, पर जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 2 से भी ज़्यादा है. ओके, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस. ओके, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. नाउ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड थोड़े सम्स कर लेते हैं. So here we have 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. ओके, तो पहले सीरीज़ का आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर्स का फॉर्मूला आना चाहिए. 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. नाउ व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन. ओके, तो तीनों 9 पिकोफैराड के, तो 9 + 1/9 + 1/9 + 1/9
ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दिया और ऊपर न्यूमरेटर का सम्स कर दिया, तो 3/9। ओके, तो ये आया 1/3। ओके, नाउ ये रेसिप्रोकल आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, और ये आया हमारा आंसर 3 पिकोफैराड। ओके, नाउ अभी पूछा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। नाउ एज ऑल द कैपेसिटर्स हैव इक्वल कैपेसिटेंस, देखो तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। ओके, सो द पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अगर तीनों का कैपेसिटेंस सेम है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। ओके, सो टोटल कितना है 120 वोल्ट, तो उसका थर्ड पार्ट अगर ले लें हम, ओके, तो ये तीनों में होगा। सो 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 40 वोल्ट तीनों एक एक के अंदर। C1 के अंदर 40 वोल्ट होगा, C2 के अंदर 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और C3 के अंदर 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नाउ 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2, 3 and 4 picofarad connected in parallel. Okay, so what is the total capacitance of combination? तो हमें क्या करना है, जस्ट उनका सिंपली एल्जेब्रिक सम कर लेना है। तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9 पिकोफैराड है। नाउ डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। नाउ रिमेंबर दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज डिफरेंट होता है। ओके, सो Q1 इज इक्वल टू C1V, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो ये पूरी कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। सो C1 क्या है हमारा 2 पिकोफैराड है, 2 × 10⁻12 ये हमारा C1, और पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। ओके, सो ये 2 × 10⁻10 कूलम। सिमिलरली फॉर Q2 Q3। ओके, सो 3 × 10⁻10 कूलम एंड 4 × 10⁻10 कूलम। नेक्स्ट 2 capacitors of capacitance of 6 microfarad and 2 microfarad are connected in series with a battery. ओके, नाउ सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। ऑलराइट, द वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, एक 6 माइक्रोफैराड का है, ओके, एक 2 माइक्रोफैराड का है। ओके, और ये टोटल कॉम्बिनेशन को किस में जॉइन किया हुआ है, सीरीज़ में जॉइन किया हुआ है। ओके, नाउ वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड दे दिया है कि यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और हमें क्या पूछा है कि कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, तो हमें टोटल बैटरी वोल्टेज फाइंड करना है। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो यहाँ पे V1 होगा तो यहाँ पे V2 होगा। ओके, और टोटल क्या होगा V1 + V2 हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, V2 फाइंड करना पड़ेगा। बट देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चार्ज इज इक्वल टू सेम, सो Q इज इक्वल टू हम CV लिखते हैं, तो और दोनों में चार्ज तो सेम होगा, तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर इज C × V। ओके, तो कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड का है, और वोल्टेज कितना है उसमें ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट, ये लिखा हुआ है। और चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज जो हमें मालूम नहीं है कि उसके अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो अभी हमें V को फाइंड करना है, तो हमें V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 6 × 2 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 12 टोटल क्या है 1 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 माइक्रोफैराड में 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ 3 वोल्ट। मीनिंग कि हमारा सप्लाई पूरा 3 वोल्ट का होगा।